Good morning, students. Welcome to the English class. Chapter 5 Meet Mr. Crab. Today we are going to discuss word power, plurals. Students, plurals means uh, as we read in numbers, change the number. For example, girl is a singular form of noun and plural form is girls. So we are going to discuss some more ways to make plurals. Let Mr. Crab remind you 8 ways to make plurals. Friends, add s to form the plural of most nouns. 1 crab, 3 crabs. 1 leg, 8 legs. So students, as you can see here, 1 crab, when number is 1, then you can say 1 crab. When number changes in 3, then 3 crabs. 1 leg, 8 legs. So when numbers are changed, then you have to put plural form of nouns. Okay, as you can see here, crab is a noun. Here crab, here crabs. When number of crabs changed 1 to 3, then crab changed into crabs. Plural form of crab is crabs. For nouns that end in s, double s, x, ch or sh or es, add es. स्टूडेंट्स जिन नाउन्स का एंड जो है वो एस, डबल एस, एक्स, सी एच और एस एच से होता है, उनमें आप ई एस ऐड करते हो प्लूरल बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, 1 बीच, मैनी बीचेस. 1 octopus, 4 octopus. You can see here the noun bench is ending with ch, then you have to put here es, not s, es. To make plural, you have to put here es. 1 octopus, 4 octopus. So you have to add es to make these nouns plural. Here for nouns that ends in y with a consonant before the y, remove the y and add ies. Consonants are our alphabets. 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना आपके, ए बी सी ए टू जेड. 5 उनमें 5 जो आपके वॉवल होते हैं और बाकी के 21 क्या होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स. सो व्हेन नाउन एंड्स विद वाई कॉन्सोनेंट और वाई से पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट हो विद द कॉन्सोनेंट बिफोर द वाई, रिमूव वाई एंड ऐड IES. देन आपको वाई रिमूव करके IES लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, 1 enemy, many enemies. Here you can see 1 enemy. Here enemies ends with my, ends with y, but before y here is a consonant m. Then you have to put here IES by dropping by. 1 leg, 8 legs. You can see here. Next, 4 nouns that ends in y with a vowel a, e, I, o, u before the y, add s. So students, as you can see here, यहाँ पे क्या था आपका y से पहले क्या था आपका कॉन्सोनेंट m, एंड यहाँ पे क्या है आपका y से पहले अगर आपका वॉवल आएगा a, e, I, o, u, इनमें से कोई भी ये आपके क्या है वॉवल. अगर y से पहले वॉवल आता है तो आपको वहाँ पे डायरेक्टली y के बाद s पुट करना है. ओके, y के बाद s ऐड कर देना है.
1 stingray, 5 stingrays. Next, for nouns that end in f or fe, replace the f or fe with ves. Students, one life, many lives. Students, when a noun ends with f or fe, or then you have to replace f or es with ves. तो स्टूडेंट्स, जो नाउन जो है आपके एफ और एफ ई से एंड होते हैं, उनमें आपको क्या करना होता है, आपको एफ और एफ ई जो है रिप्लेस करना होता है वी ई एस से. रिप्लेस मीन्स आपको एफ ई हटा के वी ई एस लगाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, वन लाइफ, मैनी लाइव्स. हेयर यू कैन सी, हेयर नंबर इज़ 1, हेयर मैनी. यहाँ पे एक यहाँ पे बहुत सारे. मैनी मीन्स बहुत सारे. So you have to put here VES by dropping FE. One loaf, 5 loaves. Here you can see loaf ends with F. Then you have to drop F and put VES. Some exceptions take the F into the plural. But कुछ exceptions होती हैं. Exception means कई जो नंबर्स होते हैं आपके एफ़ से एंड होते हैं, फिर भी उनके साथ क्या होता है, आपको एस ही लगाना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 रूफ, मैनी रूफ्स. 1 चीफ, 2 चीफ्स. इन वर्ड्स में आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली एस ही पुट करना होता है. नेक्स्ट, फॉर नाउन्स दैट एंड विद द कॉन्सोनेंट बिफोर ओ, एड ई एस. फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 hero, 10 heroes. So students, when a noun ends with O, then you have to add ES. Okay. For example, 1 potato, some potatoes. Here you can see noun hero ends with O, then you have to put ES with hero. Then number is 1 hero, here 10 number, then you have to put here ES, heroes. 1 potato, some potatoes. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ. यहाँ पे आप बोल सकते हो 1 आलू, 1 पोटैटो. यहाँ पे कुछ पोटैटोज, कुछ आलू है ना. नेक्स्ट, फॉर नाउन्स दैट एंड इन जेड, एड ZES. So students, when a noun ends with Z, then you have to add ZES. Okay. For example, 1 quiz, several quizzes. एक quiz, यहाँ पे बहुत सारे quizzes. Then you have to put, here you can see, आपने Z को डबल करके ES लगा दिया. आपको क्या पुट करना होता है यहाँ पे, ZES. जब कोई नाउन जेड से आपका एंड होता है, तो आपको वहाँ पे जेड डबल करके ES लगाना होता है. मीन्स ZES लगाना होता है. ओके. some exceptional nouns stay the same and some nouns change completely. बट कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं आपके जिनमें क्या होता है, आपके कुछ नाउन्स जो है वो वैसे कि वैसे ही रहते हैं. अगर नंबर चेंज भी हो जाए तब भी वो वैसे ही रहते हैं. मतलब नंबर जैसे 1, 6 ऐसे नंबर चेंज भी हो जाए तब भी वो सेम रहते हैं. बट कुछ नाउन जो होते हैं वो कम्प्लीटली चेंज होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 चाइल्ड, हेयर 6 चिल्ड्रन. तो स्टूडेंट्स, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है आपका चिल्ड्रन. 1 चाइल्ड एंड 6 चिल्ड्रन. 1 माउस, प्लेंटी ऑफ माइस. प्लेंटी ऑफ मीन्स बहुत सारे. 1 fish, here you can see some nouns stay same. 1 fish, 2 fish. 1 deer, 5 deer. तो स्टूडेंट्स, कुछ जो नाउन्स होते हैं जैसे फिश हो गया है, ये आपके नंबर चाहे चेंज, 1 फिश है यहाँ पे, 2 फिश,
फिश सेम रहेगा, आपका यहाँ पे सिर्फ नंबर चेंज होगा। चाहे आप 10 अप टू हो, 3 हो, 4 हो, तभी आप क्या लिखोगे इनको, फिश। डियर को डियर। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पेज। Let's try this with a few sentences. This crab has only one leg, but the other crab has all 10 legs. Students, क्रैब जो होता है उसकी कितनी लेग्स होती हैं, 10 लेग्स होती हैं, बट ये क्या बोल रहा है कि दिस क्रैब हैज़ ओनली वन लेग। इस क्रैब की सिर्फ एक लेग है, बट द अदर क्रैब हैज़ ऑल 10 लेग्स। उसकी सारी मतलब पूरी लेग्स है उसकी 10। दिस बीच इन मुंबई इज़ नॉट एज क्लीन एज द बीचेस इन गोवा। स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस बीच, यहाँ पे एक बीच की बात हो रही है, यहाँ पे गोवा के सारे बीचेस की बात हो रही है। The lady in the red sari met 2 other ladies at the bus stop. Here lady का plural आपका क्या है, ladies. A day in summer is longer in comparison to any other days in winter. Here you can see day का plural days. क्या बोल रहा है कि समर के कंपैरिजन में a day in summer is longer, जो समर के डेज होते हैं, समर सीज़न के डेज होते हैं वो लॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर सीजन। दिस नाइफ इज़ शार्पर दैन द अदर नाइफ्स। हियर प्लूरल ऑफ नाइफ इज नाइफ्स। यू कैन सी हियर द नाइफ ends with FE. Then you have to drop FE and put VES. The number 10 has 1 0 while the number 100 has 2 zeros. Okay, now come to the let's try for 4. Have a look at what happens when we change words to plural in a sentence. Students, जब हम सेंटेंस में वर्ड को प्लूरल करते हैं तो कैसे करते हैं? द बेबी इज़ क्राइंग, द बेबीज आर क्राइंग। तो आपको क्या करना पड़ता है, जब आप प्लूरल करते हो नाउन का तो आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को भी प्लूरल बनाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, द टोमेटो हैज़ टाइनी सीड्स। द टोमेटोज हैव टाइनी सीड्स। यहाँ पे टोमेटो को टोमेटोज में जब आपने किया तो यहाँ पे आपका हैव में चेंज हो गया। ओके, हैज़ इज़ अ हेल्पिंग वर्ब. When you put plural form of noun, then you have to plural of helping verb. Sorry. The child was walking home. The children were walking home. School is shut for summer. Schools are shut for summer. Students, do you remember the helping verbs you learnt in the chapter 5? They also help us understand whether we are referring to one or many. So they change with plurals. You can see here. आपको हमने जिस लास्ट चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर 5 में, कि जब जो कि हमने हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि आपका नाउन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, कि और आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल के साथ चेंज हो जाती है. यू कैन सी हियर इज़, आर, was, were, has, have. So students, you have to do. Let's try 4. Thank you.